वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम राम राधे राधे। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਅੱਜ 26/2/2026 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਹੋਣੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮਾਂਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਓ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਚੂਰਮਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਲੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣੇ ਆ ਜੀ ਹੋਲੀ ਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਕਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਲਕਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ। आपको परिवार को सबको पूरे नगरवासियों की खुशी के लिए जी जी। तो ये महान जी है। तो इधर संगत जो है ना सारे काम करती पई है संगत। इधर साडियां बीबियां भैणां लगियां होईयां आ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਗੋਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੂਰਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੂਰਮਾ ਆਉਣਾ, ਚੂਰਮਾ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी की हाल चाल है? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਆਟਾ ਜੀ, ਆਟਾ हाँ जी आटा जी ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਟਾ ਇਹ ਗੁੰਨੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਚੂਰਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਣਦੇ ਪਏ ਜੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੋਗਲੇ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਗੋਗਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੌਰ ਆ। ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਆ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ? होलिया का प्रोग्राम हो रहा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਆਟਾ, ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਾ ਆ। ਆਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਗਲੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੋਗਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਗੋਗਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਗਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਦਾ ਆ। ਇੱਧਰ ਜੀ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੋਗਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਗੋਗਲੇ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਗਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਨੀਮਾ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਲੱਗੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਗੋਗਲੇ ਤਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਗਲੇ ਆ ਚੱਠੂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਠੂ ਪਏ ਆ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਠੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਗਲੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ
ਉਹਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਚੱਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਕਰਨ ਲਿਆ ਦੇਖੋ। ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗੋਗਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਟੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਥੱਲੇ ਬੋਰੀ ਲੱਗੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਣੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਭਈਆ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਲਵਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲੂਗਾ ਇੱਧਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਜੀ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਲਈ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਹਲਵਾਈ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਖੀਰ ਨਾਲ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਲੱਭਾ ਭਾਜੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੂਰੀਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਪੇੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਜੀ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ। बोले हमारा चित्त जो है इधर उधर भागता है, जो एक ही जगह राम जी में अटका रहे वह चित्त है। फिर तीसरा शब्द कहा बोले आनंद। बोले सब चीज का विलोम सुना होगा लेकिन आनंद का नहीं। कहते हैं बोले आनंदा इव आनंदा। आनंद के बराबर केवल आनंद ही है। जैसे कहते हैं ना समुद्रा इव समुद्रा। समुद्र की कोई तुलना कर सके? बोले नहीं, समुद्र की तुलना केवल समुद्र ही कर सकता है। समुद्रा इव समुद्रा। और बोले आकाशा इव आकाशम। आकाश की अगर तुलना करें तो कर सकते हैं? बोले नहीं, एक छोर से दिख रहा है और दूसरे छोर कहाँ खत्म हो पता ही नहीं। ऐसी बोले क्या है? आनंद इव आनंद। आनंद के बराबर आनंद ही है। बोले कौन? बोले नारायण। बोले ये आनंद नहीं है कि अगर हम किसी कमरे पे बैठ गए
मखमली गद्दा ले लिया, ऐसी रूम पे बैठ गए, ऐसी चला दी हैं, और फिर कहे कि आनंद आ गया, ऐसा हो सकता है? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वही आनंद अगर ज्यादा हो गया ना तो तबीयत बिगड़ जाएगी, तो आनंद फिर परमानंद में चले जाएगा। इसलिए वो आनंद नहीं है। और कहते हैं ना, जैसे हम कहीं पर भोजन कर रहे हैं और भोजन करके फिर कहते हैं कि आनंद आ गया, वो आनंद है? बोले नहीं, वो भी आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वही भोजन अगर ज्यादा हो गया तो शरीर की अवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए वो आनंद नहीं है। आनंदा इव आनंद, आनंद के बराबर आनंद ही है, भगवान ही है। इस प्रकार सच्चित आनंद की व्याख्या कही गई। और कहते हैं, सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। बोले जिसका कभी विनाश न हो, जो विश्व के उत्पत्ति के कारण है, ऐसे सच्चिदानंद श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब किसी ने कहा, बोले वो सच्चिदानंद करते क्या है? तब कहते हैं, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। विश्व की उत्पत्ति कैसे? बोले ब्रह्मा बनकर रजोगुण धारण करके वह सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु बनकर सतोगुण धारण करके उसका पालन पोषण करते हैं, और फिर वही शंकर बनकर, शिव बनकर जो है तमोगुण धारण करके सृष्टि का विनाश भी करते हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद जो विश्व आदि उत्पत्ति के कारण है। फिर कहा, तापत्रय विनाशाय, तीन ताप कहते हैं। कौन कौन से? देहिक देविक भौतिक ताप, राम राज नहीं काहू व्यापक। इस संसार में, इस धरा पर कोई दैहिक ताप से जल रहा है, कोई देवी ताप से जल रहा है, और कोई भौतिक ताप से जल रहा है। दैहिक ताप मानो किसे कहते हैं? बोले जो देह से उत्पन्न है, ज्वर व्रण इत्यादि दैहिक ताप कहे गए हैं। बोले कोई इनसे ग्रसित है। बोले कोई दैविक ताप कैसे? बोले जैसे 2013 में केदारनाथ बाढ़ आई थी ना, उस बाढ़ से संकट में पड़ गए, भूकंप इत्यादि दैविक ताप। कोई उस ताप से जल रहे हैं, और कोई भौतिक ताप, यानी जो ग्रह नक्षत्रों के द्वारा जो ताप प्राप्त हो रहा है, कोई उससे जल रहा है। बोले इन तीनों तापों को मिटाने में कौन सक्षम है? बोले साक्षात नारायण, जो तीनों तापों को मिटाते हैं। बोले ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। इस प्रकार जो है पहले इस श्लोक में सच्चिदानंद विश्व की उत्पत्ति आदि के कारण और तीनों तापों को मिटाने वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार किया गया। अब दूसरे श्लोक में कहा कहते हैं, बोले सुखदेव जी की वंदना करेंगे क्या? यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। किनकी वंदना करी गई? बोले सुखदेव जी, जिन सुखदेव जी का अभी नालो छेदन भी नहीं हुआ, 16 वर्ष के हो गए,
दिगंबर अवस्था में जंगल की ओर जाने लगे। पिता को मोह हुआ, अरे पुत्र कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। एक पिता को तो अपने पुत्र पे मोह हो गई, बोले पुत्र कहां जा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। जैसे ही सुखदेव जी ने देखा, अपने आत्माओं को वृक्षों से जोड़ दिया और वृक्षों से जैसी आवाज आने लगी, सुको हम, अरे मैं सुख हूं, अरे मैं सुख हूं, क्या तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, इतना मोह अच्छा नहीं है। उन वृक्षों से जैसी आवाज आ रही है, वो संकेत दे रहे हैं, अरे सुनो, अरे हम भी तो वृक्ष हैं, हमारा जीवन देखिए, छोटे से लेकर बड़े तक हम परोपकार में ही लगे हुए हैं। अरे और क्या कहें, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे नीचे लोग आते हैं और छाया का सुख लेते हैं। और कहें हम फल इत्यादि हम पर लगते हैं, हम इनको खुद नहीं खाते, बोल दे किसी और को दे देते हैं। और तुम एक पुत्र के मोह में पीछे पीछे आ रहे हैं, बोले यह अच्छा नहीं है। जैसे व्यास जी ने देखा, ज्ञात हो गया, बोले तो साक्षात नारायण ही हो सकते हैं, नारायण के ही स्वरूप है। ऐसे बोले, ऐसे सर्वभूत हृदय मुनि को नमस्कार करके वापस चले गए। दूसरे श्लोक में भगवान शुक्राचार्य को प्रणाम किया गया। पहले श्लोक में बताया गया कि कथा किसकी है, और दूसरे श्लोक में कहा गया कथा कहने वाला कौन है, और तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि कथा का क्षेत्र कहाँ है, कथा का स्थान कहाँ है। तो कहते हैं नेमिषे सूतमासीन अभिवाद्या महामती कथामृत रस स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत, कुशला शौनको ब्रवीत। बोले नेमिष जैसा यह पावन तीर्थ कथा क्षेत्र। बोले जब कथा में जाओ ना तो 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बोले क्या क्या, तो सबसे पहले कथा किसकी है। बोले कोई अगर राम उपासक है और वो चले गए कहीं देवी भागवत में, कहीं पर देवी जी, वहां पर देवी जी की महिमा अधिक बढ़ाई गई, बताई जाएगी, तो उनके मन में ऐसा ना हो कि हमारे प्रभु ऐसे और यहाँ पर देवी की महिमा बताई जा रही है। बोला ये नहीं होना है। फिर कहा गया वक्ता को विचारो। बोले वक्ता हमारे धर्म के अनुकूल है कि नहीं है। बोले कथा तुम किसी करा रहे हो और वक्ता तुम्हारे किसी और धर्म के हो। बोले ऐसा भी नहीं है, वक्ता अपने अनुकूल पे होने चाहिए। और तीसरी चीज बताई गई स्थान कौन सा हो। कहीं जो है किसी शत्रु के घर अगर रामायण चल रही हो और अगर वहां पहुंच गए आप, शत्रु ने देख लिया तो रामायण की जगह महाभारत में शुरू हो जाए, तो उसको भी विचारो। बोले यहाँ पर तीनों चीजें अनुकूल है। कौन कौन सी। बोले कथा किसकी है। बोले जो सारे धर्मों के अनुकूल है। ऐसे सच्चिदानंद की कथा है। वक्ता कौन है। बोले हमारे अनुकूल सुखदेव जी महाराज है, व्यास जी है, हमारे धर्म के अनुकूल है। और तीसरा क्षेत्र नेमिष जैसा क्षेत्र है जहां पर 88,000 सौनकादि ऋषि भगवान की आज्ञा से विराजमान हो रखे हैं। दिन भर जो है यज्ञ इत्यादि करते हैं, कथा सुनते हैं। रात को जो है पूरी रात कथा सुनते हैं, 4-5 घंटे सोते हैं। उसके बाद उस समय बच जाता है, उसमें फिर एक दूसरे को कथा सुनाते रहते हैं। बोले ऐसे ही व्यतीत करता है अपना समय। किसने कथा सुनने में। बोले जैसे कथा सुन रहे थे उसी समय सूत जी महाराज वहां आ गए और सूत जी को देखकर जो सभी लोग खड़े हुए और उनको प्रणाम करने लगे। कहा बोले यद्यपि सूत जी उनकी अवस्था सबसे कम थी,
लेकिन सभी संतों ने उनका स्वागत किया, उनके स्वागत के लिए खड़े हुए। बोले क्यों? बोले हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के बड़े कहे गए हैं। कौन कौन से? आयुर्वृद्धा, बलवृद्धा, धनवृद्धास्तथैव च, ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा, किंकरा शिष्य। हम तो आते रहेंगे।